ہو گئے تھے تو میں نے کہا تھوڑے معاف کروا لیں. ارے واہ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اچھا تو فرمائیے سر, انہوں نے یار مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ اللہ جنت میں گھر کرے, وہ خاتم رضوی صاحب تقریر کر رہے تھے. یہ سر ہم عمران خان صاحب کی تقریر میں سرپرائز ڈھونڈتے رہے, اور ہمیں سرپرائز ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصہ ہو گیا. تقریباً 3 گھنٹے پہ ان کی تقریر میسر تھی عوام کو, جی اور جس حوصلے سے عوام نے وہ تقریر سنی ہے, اور سما نے یہ نیوز بریک کی ہے کہ 6 سے زیادہ وزراء تھے وہ اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے تھے, جس میں مراد سعید شامل تھے, اور اس کے اندر علی امین گنڈا پور شامل تھے, اور بھی مزید وزراء تھے جو تقریر کے دوران عمران خان کی, اور وہ اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے تھے. عمران خان نے پہلی بات شروع کے 2 گھنٹے تو کوئی نئی بات نہیں کی, کوئی کوئلے کی کانیں, بادشاہ ڈیم, اور وہ جو اپنی ایک گفتگو کرتے ہیں میں 15 سال یورپ میں رہا, مجھے کوئی جانتا نہیں, یورپ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, مطلب وہی گھسی پٹی تقریر. ایک تو پہلے وہ کی, آخری جو 15-20 منٹ تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے ان کے. انہوں نے جیب سے ایک پرچہ نکالا, انہوں نے کہا یہ میں نے تقریر خود لکھی ہے, حالانکہ میں تقریر لکھ کے نہیں, اس چیز کا اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ یہ تقریر میں لکھ کے کبھی بھی نہیں کرتا. تو میں نے کہا یہ بہت اہمیت کا معاملہ ہے اور ذمہ داری کا معاملہ ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے میں نے سوچا پہلے میں لکھ لوں. مطلب ان کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ ذمہ دار لوگ تقریر جو ہے وہ لکھ کے پڑھا کرتے ہیں. یہ تو اعتراف کیا, اور مسکرا رہے تھے یہ بات کرتے ہوئے. مطلب عمران خان کو یہ احساس ہو گیا, ٹریننگ چل رہی ہے, کا جو منبع ہے وہ بتا رہا تھا ایسی اسد صاحب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس نے تھوک کے نہ چاٹنی ہو, نہ چاٹی ہو. وہ سر مہان لیڈر ہیں وہ یوتھیوں کے, کیا کہہ سکتے ہیں. تو سر کہنے کا پھر انہوں نے پھر وہ تقریر نکالی, انہوں نے کہا اس میں سب سے پہلا ورڈ انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو کو کنہوں نے پھانسی دی, جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی آج ان لوگوں کے ساتھ مل کے بھٹو کو نواز صاحب میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ بھٹو کو جن حالات پیدا کر کے پھانسی دی گئی وہی حالات میرے خلاف پیدا کیے جا رہے ہیں, نام نہیں لیا. انہوں نے آج کھل کے بات, پھر انہیں ایک خط نکالا. تو وہ دنیا کو کیا وہ دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ قصوری صاحب کی وجہ سے وہ پھانسی ہوئی تھی, اور قصوری صاحب جو ہے وہ آج کل پی ٹی آئی میں, لوگوں کو تو بتاتے چلے نا ذرا موٹا موٹا. بالکل, 2 باتیں بڑی اہم تھی. پہلی بات تو یہ انہوں نے بھٹو کے پوری بھٹو کی انہوں نے بہت زیادہ داد پرسی کی, بڑا بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا بھٹو بڑا زبردست, میرے اختلاف اپنی جگہ, لیکن بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر تھا. لیکن بھٹو کو جنہوں نے پھانسی دی ان کا نام نہیں لیا. اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت مل کے اپوزیشن کے ساتھ مل کے میرے خلاف سازش تیار کر رہے ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو کے خلاف سازش تیار کی اور بھٹو کو گھما کے بتاتا رہا کہ وہ جی گھما پھرا کے وہ تھوڑا سا کامریڈ ہونے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے تو باقاعدہ یہ ٹویٹ بھی کیا کہ اگر یہ جنرل بھاجپا کا نام لے دیں تو میں پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آج آپ کو میں 0-0 کر دیتا ہوں, آپ نے جو کیا پیچھے سب معاف. یہ جو ان کے پاس خط تھا وہ شہزاد اکبر کہتے ہیں چوری کر کے لائے, کیونکہ شہزاد اکبر کے پاس ایک خط ہوتا ہے جس میں وہ خط ان کو دیا ہے شاہ محمود قریشی نے, ان کا ہینڈ اوور کیا ہے, اور اس خط کے اندر بہت کوئی قومی راز بسے ہیں. وہ قومی راز انہوں نے خط نکالا جیب سے, انہوں نے کہا یہ خط اتنا اہم ہے کہ اس سے میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ خط اتنا اہم ہے, اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ خط, اس خط میں کیا ہے. خط کو دیکھا, میرے خیال سے اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اس میں شاید وہ بشرا بھابی بشرا بھابی نے کچھ اس میں راشن واشن لکھا ہوگا, رمضان آنے والے ہیں آپ کو پتا ہے. اس خط میں زیادہ ڈرامے بازی کی ہے صرف میرے خیال سے. یہ جنات کے لیے جو کوٹا تھا کہ اتنے 100 من چکن چاہیے زندہ اور اتنا کوئلہ چاہیے جلانے کے لیے, یہ ہوگا نا خط. اور مایوسی تھی چہرے پہ, آج کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی, اور لگ رہا تھا کہ شکست خوردہ شخص جو ہے وہ اس وقت ایک ہفتے سے ایسی نوست چھائی ہوئی ہے اس شخص کے منہ پہ کہ بس. پھر وہ خط جیب میں ڈال لیا انہوں نے. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ باتیں کھل کے سامنے کروں, پھر انقلاب کی آوازیں آئیں آڈینس میں سے کہ بھئی انقلاب تو خان صاحب نے کہا انقلاب تو نہیں. مطلب خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو, قسط نمبر 1. قسط نمبر 2 تو یہ ہوگی نا مجھے کیوں نکالا, کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو. آج کی تقریر کے آخری جو سرپرائز تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو. پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی ترقی کی, میں نے صحت کارڈ دیے, میں نے فلاں فلاں فلاں, وہ بکواس کی جو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سازش, جو لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. انڈائریکٹلی تمام تر اینکرز, تمام تر تجزیہ کار اس وقت یہ بات کرے کہ عمران خان نے لانے والوں کے خلاف بغاوت کا ایک چھوٹا سا آغاز کیا ہے, شاید وہ ان کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کے خلاف بہت زیادہ باتیں کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی. پھر انہوں نے منت سماجت کی ان لوگوں کی کہ جو ان کو منحرف ارکان جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خدا کے لیے, انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ.
जो 18-20 करोड़ तुम लोगों ने लिए हैं वो वापस कर दो और हमारे पास वापस आ जाओ। फिर अच्छा, उन्होंने कहा कि आज भी नून तरले लीग किए हैं, लोगों को मतलब ये कन्फर्म कर दिया कि वो वापस नहीं आए। तरले किए, आज भी तरले किए हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने तो नून इसका लीग मतलब वालों ये से है कि वो जो कह रहे थे कि वो वापस आ चुके हैं, ये वो मतलब सब वो झूठ खुद है। ही उस बात को वो कर गए कि वापस नहीं आए। जी, फिर नून लीग वालों से मुखातिब हुए, नून लीग के अरकान से, कि तुम लोगों का तो लीडर कहता था कि जरदारी का पेट फाड़ूंगा, क्या उसने पेट फाड़ा? तुम लोग मेरा साथ दो। जरदारी को कहा कि ये तो भुट्टो के कातिल हैं, ये बेनजीर के साथ ज्यादती करने वाले लोग हैं, नून लीग मतलब वाले, महल्ले तो दी इनका साथ कमेटी क्यों दे रहे हो? महल्ले दी कमेटी वाली आंटी महल्ले दी कमेटी वाला आंटी रोल अदा किया खान फिर साहब। परवेज जिलाही को महल्ले की परवेज कमेटी जिलाही को वाला ताने रोल अदा मारे। किया है उन्होंने आज। आज नाकाम हो गए यार बेचारे, नाकाम हो गया। गए। और सरप्राइज वो किधर गया? आज अंदाजा लग गया था कि अवाम भी इतनी बड़ी तादाद में सर नहीं आई ये थी। बताएं, तो आपकी 40,000 कुर्सियां कह रहे फिल हो थे। गई थी? नहीं सर, किधर गोदों में भी नहीं बैठ सके एक दूसरे के बेचारे। तो ये तो ना कोई सरप्राइज इनका आया सामने। और असद भाई बिल्कुल दुरुस्त उसका नक्शा खींच रहे हैं कि देखें, हम लोग माइक के लोग हैं, तो हम आंखें बंद करके ना कान से सुनकर बता देते हैं कि मजमे में बाजगश्त कितनी है, एको। ठीक है, आप अभी हमजा का जलसा देखें, मरियम साहबा की तकरीर सुने, उसमें ना एक कंटिन्यूटी आती है अवाम के नारों की। यहाँ एकदम नारा कट जाता था और फिर कहता है माइक्रो स्पीकर से उतरो नीचे, मैं बात कैसे करूंगा, स्पीकर से नीचे उतरो। और एक जगह पूछा किसी से, अब मैं क्या बात करूं, यानी टॉपिक कोई नहीं था। अच्छा, फिर वो जिस तरह होता है ना इंटरनेट पे, वो सस्ती घटिया शोहरत के लिए वो कहते हैं कि अभी आपको बताते हैं, अभी आप राज फाश करेंगे, अभी आपको बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। वो जो हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद बताएंगे कत्ल हुआ कैसे। आखिर में एक कागज निकाला, मेरा शक है कि वो था, इस्तीफा ही था, मगर इसकी कांप गई टांग ना, कांपे टांग गई। कांप पे टांगी, इसने अच्छा, वापस ये रख बड़ी दिया। इम्पोर्टेंट, कहता है ये शाह महमूद कुरैशी ने मुझे दिया है। और इस्तीफा हो सकता था सर, इस्तीफा हो सकता था ये। हाँ, ये इस्तीफा ही था इसकी जेब में कि अगर मुझे ज्यादा लानत पड़ने लगी तो, क्योंकि डर भी लगता है इसको। अब जो असद भाई ने, अच्छा खान साहब, मैं आपकी बात काटूं माफी के साथ। वैसे खान साहब यहाँ पे रंगबदनी नहीं कर सके, कह सकते थे ये मेरा इस्तीफा है, अब मैं अवाम से पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा थी मुझे देखें, मुझे ना, मैं जस्ट जो थोड़ी बहुत 1 से 1.5% जो मैं इमरान खान को थोड़ा अक्लमंद समझता था ना, शायद वो भी माइनस हो गया। अभी 100% उसको बेवकूफ समझता हूँ। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन देखें। नहीं, वो अब हमें अगर ये इस्तीफा दे देता, अभी हमें आप पर भी शक है, क्योंकि आपने आज पूरी तकरीर सुनी है, ऐसी बातें ना सुने ना, 1 से 1.5% ना, मैं 98.5 तो बेवकूफी समझता था इसको। मैंने कहा चल एक बंदे को बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए ना 1.5% का। जी। वो इसलिए मेरी आज उतर गया कि इसने अपनी किस्मत में जलील होना ही इसने गवारा किया। ये अगर इस्तीफा दे देता तो लिटरली अपने वोटर्स और अपने चंद सपोर्टर्स में इसकी इज्जत रह जाती। अगर ये आज इस्तीफा दे देता, लिटरली यकीन करें, इस्तीफा देके ये कहता कि ये माफिया ने मुझे मजबूर किया, अब हम लोग इनका मुकाबला करेंगे, मेरे खिलाफ कुछ साजिशें थी, वो मुझे इस तरीके से उतारना चाह रही है। अदम एतमाद में तो जलील होकर निकलेगा ना, जब पार्लियामेंट में लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे, जब ये आईनी तरीके से हटेगा तो सर उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है मीडिया के ऊपर। जब वो डिबेट में आएगी ना चीज, अदम एतमाद से जब वज़ीर आज़म उतरेगा और वो जब डिबेट में बात आएगी, तो फिर आप और मैं जब डिबेट कर रहे होंगे ना उसके ऊपर, और फिर तज़किये दे रहे होंगे अपने, तो यकीन करें बातों से बातें निकलेंगी और ये मजीद जलील होता जाएगा। अगर ये इस्तीफा दे के चला जाता और कुछ अपने ऊपर बात रख देता कि मुझे माफिया ने मजबूर किया, मैं लड़ नहीं सकता इनके खिलाफ, अब मैं अवाम के बीच में, मैं इस्तीफा देके अब अवाम के बीच में आ गया हूँ। अरे ये ऐसे मुशीर नहीं मिले ना, मसला ये है इसको जो उसको बोलते। यार असद, वैसे आपस की बात है, वो असद उमर के बजाय असद मिर्जा होता ना, तो इमरान खान ने अल्लाह की कसम कुछ ना कुछ कर लेना सी। मशवरा अच्छा ले लेते तो हम भी मशवरा देते। खान साहब, इससे ज्यादा बेहतर मशवरा ये था सर, अगर वो ये कहता ना कि आज के बाद मैंने सियासत भी छोड़ दी, ये कुछ करके दिखाएं, और आज के बाद जो उनसे ना लंदन में आस्ताना इमरान खान शरीफ जो उनसे ना मैंने खोल लिया और वहां पर आ जाएं, और खुदा वो जो एक इसने पिछले दिनों कैंपेन किया कि अल्लाह का पैगाम आ गया लिख लो इमरान खान के लिए, तो ये ज्यादा बेहतर था। इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आरटीएस बंद करके ये अगर मतलब सही इलेक्शन हो जाता ना 2018 के अंदर, ये आरटीएस बंद ना होती और ये सारी सूरत हाल ना बनाती, ये ग्रुप्स ना बनाए जाते, इसको अपनी सीट निकालना मुश्किल हो जाती, एक सिंगल सीट निकालना मुश्किल हो जाती।
क्योंकि कौन टोटल यकीन देखें करेगा इस पे? सारा जो सा ना मामला वो जा रहा था नून लीग की तरफ, वो तो डकैती पड़ी है, इसको मुसल्लत किया गया, और मुसल्लत करने वाले वो अपने टारगेट अचीव जरूर कर गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बेइज्जती का म्यार ये होगा। सर सोशल मीडिया ने कांपे टंगवा दी हैं हर एक जज, आप मुझे बताएं। और अभी आपको ये भी देख लें कि कुछ टाइम की बात है, ये जिस टाइम में पर्चे खुलना शुरू होंगे ना, तो हर एक ने परेशान होना है। एक एक शख्स का, एक एक अफसर का हैरान पीछा और किया जाता है, एक एक जज का पीछा किया जाता है। दोपहर वाला तो नहीं, हैरान परेशान कर दिया, वही हुआ है। वो तो चले हो ही गया। खान साहब आप क्या कहते हैं, ये जो रिलीजियस को यूज कर रहा है, ये क्या एक स्ट्रेटजी है या कि इत्तेफाक है? नहीं, इसको किसी ने ना गलत पढ़ा दिया है कि आज के जमाने में भी पाकिस्तान की अवाम जो है ना खुदा को ना नहीं कर सकते, जबकि उनके ऊपर इतने बड़े बड़े धोखे हुए इसी सारे मीडियम के जरिए। उसने इसको दोबारा उनको किसी, मैंने बताया ना, इनको कुछ लोग पीपल पार्टी के जो गाइड कर रहे हैं ना, वो इनको इस तरह की बातें करने को लिए कहते हैं कि इनके पास उसमें 4 जुमलों से ज्यादा ऊपर मवाद भी नहीं होता। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ताना दिया कि भाई आपने कभी कोई इस्लाम के लिए कोई काम नहीं किया, और फिर आप अपनी तरफ बात को मोड़ी कि अल्लाह ताला ने यह एजाज मुझे दिया है तो लिहाजा मैं जो है बड़ा मोअज़्ज़ज़ हूँ, तो आपको कभी इज्जत नहीं मिली। अंदाजा लगाइए कि ये उन लोगों को जिनकी सारी जिंदगी मुसल्ले और मस्जिद के साथ कनेक्टेड है, और वो अवाम के लिए सियासत भी करते हैं, अपने लिए करते होते तो आपको पता है वो भी कहीं ना कहीं पहुंचे होते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वादा करके बैठे होते। बिल्कुल इसका जो ये कार्ड का जो खेलना है, ये अपनी शिकस्त का एतराफ है। और हर आदमी, और देखिए ये जो एमपीएस की जो लाट अभी आई हुई है ना, यकीन करें कि मैं इनको थोड़ा सा गौर से जब देखता हूं तो इनमें मुस्तकबिल के बड़े बड़े सोच वाले लीडर मुझे नजर आते हैं। ये जो एमपीए क्राउड है, ये अगर अपने नस्बुल ऐन पे जमा रहा, इसी के अंदर से बहुत जबरदस्त दबंग आजाद किस्म की लीडरशिप भी उठेगी। ये उन सब को ताने मार रहा है रिश्वत के, और हालांकि रिश्वत देकर इसके अपना, जिसका इसका अपना एक अफेयर था एक खातून के साथ, जिसके हस्बैंड ने ये खान साहब आपने अच्छा किया, ये आप खान साहब ने अच्छा किया जो जरा क्लियर कर दिया कि अफेयर खातून के साथ था। जी, उस खातून के साथ अफेयर था। उसके हस्बैंड ने टीवी पे बैठ कर कहा कि 3.5 अरब में इसने बेची है असेंबली बलोचिस्तान की। आप किसको ये बात नहीं पता कि जब ये आया तो उस वक्त इसने कितना कुछ इसने पैसा दिया, और पैसे देने के लिए अभी भी ये लोग ये तैयार था, मगर लेने वाले तैयार नहीं थे। उनको आखिर समझ में आ गई कि ये हो सकता है अवाम बिफर के इनको कत्ल कर दे, चाहे मजहब। देखिए मजहब के अंदर कुरान मजीद के राजों में एक राज ये है कि वो बहुत सारी बातें कुरान मजीद फहमे सामे पर छोड़ देता है, कुरान पढ़ने वाले पर छोड़ता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर में शैतान भी है, यानी अल्लाह हर चीज पर कादर है, शैतान पर भी कादर है। ये चीजें इंसान ये जब कहेगा ना कि इस्लाम के अंदर के ईमान और इंसाफ करो, लोगों ने इसी पे लगा देना है। क्योंकि देखिए वादा खिलाफी, झूठ, बोहतान तराशी, एक अदम सबूत के बावजूद तुम लग रहे हो, आंखों से देख रहे हो कि नून लीग के लोग, अच्छा ये नून लीग के लोग जो हैं, ये बहुत सारे इनमें से पीटीआई पलट भी हैं, बहुत सारे इनमें से पीटीआई पलट भी हैं। वो जो नहीं जो बाद में मुसलमान होते, वो फतेह मक्का के बाद तुलका। तो ये मगर कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते किसी को भाई हैं हमारे, क्योंकि मुल्क आखिर एक ही है ना, हम सब इकट्ठे ही डूबेंगे अगर डूबे नाउज़ुबिल्लाह। इस वक्त जो तकरीर इन्होंने फरमाई, ये यकीन करें शिकस्त का एतराफ था। अवाम का वो जमे गफीर भी नहीं था, इनके पास रावी शायर के अलावा कोई नई बात नहीं थी। खान साहब ऐसी वो थी। खान साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये बड़ा मजे का सुनने वाला। तो आएगा, अगर ये वालों आप पहलवान हो, ये आवाज पाकिस्तान में गूंजनी चाहिए। अगर ये तकरीर है इसकी तो सुनने वाली। मियां जी तो आएगा, मियां जी तो आएगा, मियां जी तो आएगा। नहीं तकरीर नहीं थी इसकी, जब इसकी तकरीर आएगी सर वो बड़ी सुनने वाली होगी। चलें सर प्लीज। अच्छा, जब ये इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे ना, ट्विटर के ऊपर बड़ा मजा आ रहा था। लोग वेट कर रहे थे कि सरप्राइज अभी आएगा, सरप्राइज अभी आएगा। बड़े कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स बड़े जबरदस्त आ रहे थे ट्विटर के ऊपर ना। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, नहीं कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कोई सरप्राइज नहीं है, टाइम जाया कर रहा है। सबसे मजेदार जो मुझे लगा वो ये था कि
सरप्राइज ये है कि ये ऐलान करेगा कि मैं दज्जाल हूँ. अच्छा, इससे रिलेटेड देखें असद ने जो बात और की एक और एक आखिरी बात एक और बड़ा जोक इस वक्त ट्वीट के ऊपर. नहीं, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि एक और बड़ी जबरदस्त बात की, इसने भुट्टो की फांसी को नवाज शरीफ से रिलेट कर दिया. तो लोगों ने ट्विटर के ऊपर ये बात, भुट्टो की फांसी को, कि नवाज शरीफ उस साजिश में मुलविस था, तो लोगों ने कहा कि कहीं ये बात ना कर दे कि लियाकत अली खान को भी नून लीग ने गोली मरवाई थी. तो सर ये तो कुछ भी नहीं था, इसका पता क्यों नहीं था, अपना ही मुद्दा मियां साहब पे डाल दे. चलो नहीं हो. अच्छा, ये भी बता देता कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम भी जो था ना वो नून लीग ने गिरवाया था. नहीं बिल्कुल ठीक है, दूसरी जंग अजीम, पहले जंग अजीम, पाकिस्तान बरोसगीर हिंदों से कब्जा शब्जा सब कुछ. अच्छा लेकिन चलो मैं, अच्छा मुझसे अगर दो लफ्जों में खान साहब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आपने कितनी जिंदगी गुजारी है, हम लोगों ने पाकिस्तान में जिंदगी गुजारी है, हमारे यहाँ मदारी आया यार, मदारी. खान साहब बिलीव करें, हम लोग स्कूल से जाके मार खाई है इस चक्कर के में ये मदारी अभी निकालेगा, ये अभी निकालेगा, पहला पीरियड मिस किया है, ये मदारी अभी निकालेगा, ये मदारी अभी निकालेगा, बात उसे गाना कर दे, मदारी ने सुकून जाए कुट खा दी है. तकरीर की ट्रांसलेशन में एक नुक्ता, एक जगह पूरी तकरीर में सबको कहा कि मेरी एक एक बात गौर से सुनो इसके बाद. और नहीं, अब मैं सीरियस बात करने लगा हूं. मानुल्लाह साहब कहते थे ना मदारी पे, एक एक लफ्ज सुनो मेरी बात. और फिर ये कहा कि भुट्टो को फांसी लगवाई इन्हीं जमातों के उस जमाने के लीडर्स ने, क्योंकि वो उसने असल में कहना इसने था कादियानियों को गैर इस्लामी करवाया, मगर कहा आजाद पॉलिसी पर. अच्छा कैंपेन चलाई. अच्छा वो मदारी वाली बात की ना संदेला साहब ने, वो एक मदारी आता था ना कि माचिस की डिबिया रखता था, उसके ऊपर कैप रखता था, कहता था अभी मैं इसको गायब करके दिखाऊं, तो मंत्र पड़ता था तो टोपी उठाता था, डिबिया होती थी, कहता मेरी ईमानदारी देखो, मैं गायब कर सकता था लेकिन मैंने गायब नहीं की. अच्छा वो ये सर मेरे ये तकरीर सुनानी तलाल साहब की, तलाल बड़ी मजे की, दो चार बातें ज्यादा नहीं है, ये सुनिए जरा प्लीज. करें, हाँ सुने लोग. कदी कमालिए जाके रोना वा, ओए हुण इस्लामाबाद जाके रोंदा पिया वा. गुजरांवाले वालो ओ तानू याद आ ओ लॉन्ग मार्च ते एक दफा तुहाडे कोलों लंघिया सी, तुसी एदी खिदमत खान साहब गुजरांवाले दा पैगाम सुन लो, इज्जत ना कर चल जा, नहीं तो जुतियां मार के ला लागे. ओए मेरी गल सुनो गुजरांवाले वालो, जरा नारा ए जेड़ा असी नारा लवाने ना साडे दिल नूं ठंड पै जांदी आ. ओ इन्ना जेड़े मुखालफ ने उन्हां दे दिल ते लत्तां कंब जांदियां वा. वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम. और गुजरांवाले वालों और कैमरे वाले भी दिखा रहे ने, और ये नारा नहीं असी बना के दिखाना, बना के. चौथी दफा वजीरे आजम, मैं जरा इतने जोर ना नारा लो कि मियां साहब का एक बारी फिर टेलीफोन आवे. वजीरे आजम, वजीरे आजम. जी हमें कर्नल, अस्सलाम वालेकुम सर. जी दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम. माशाल्लाह फारूक भाई बैठे हैं, अरशद भाई बैठे हैं. कर्नल साहब जी शेर है हमारे, इसमें कोई शक नहीं है. जद्दोजहद में जिस जवामर्दी और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लड़े हैं और दिल खुश कर दिया है. कर्नल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ तक पहुंचने में आपका बहुत बड़ा काम है. एक ही तो कर्नल शेर निकले है वो कह रहे ने सरप्राइज लबन वाले सारे यूथ ही ने. अच्छा कर्नल साहब का सर फायदा उठाएं जरा कर्नल साहब की मौजूदगी का. खान साहब मैं जरा बारी बारी सब अपना अपना सवाल करें. मेरा पहला सवाल जो है वो मैं कर लेता हूं, बस वहां पे कर लीजिएगा. कर्नल साहब क्या तकरीर में था आज, आपको कुछ समझ लगी तकरीर की, कुछ सरप्राइज वो जो देने थे, ये वो किधर के क्या था वो? एक जैसा एक बुखलाया हुआ हारा हुआ शख्स था
जी और कोशिश कर रहे थे कि कहीं से मैं कहीं पे कोई सर हमें कोई प्राइज दे दें, किसी तरह से ये मामला टल जाए और मुझे कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए। लेकिन वो सर ने पहले उसके पेशावर वाली लाइनें काटी हैं और प्राइज भी कोई नहीं दिया। और फिर यही होना था। वो जब आए हैं तो मुझे बड़ी हैरत हुई है। ये खैर हमें पता था कि सरप्राइज कोई नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और गारंटीज मांगी थी तो मैं उसका विटनेस था। अच्छा तो जी वो नहीं मुमकिन था, तो हमें पता था कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। अभी ये टाइम शायद कल शाम तक मजीद गेन करेंगे। उसके बाद 90% से ज्यादा चांस है कि रिजाइन करके चले जाएंगे, क्योंकि रिजाइन में नाकामी का इतराफ तो है, लेकिन जिल्लत थोड़ी सी कम है। अदम एतमाद में जिल्लत बहुत होती है। वो न्याजी जैसे और नरगसियत पसंद आदमी है, अनापरस्त आदमी है, वो अदम एतमाद की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो रिजाइन करके चला जाएगा। उसने अपनी पूरी कोशिशें करनी है। उसने आला अस्करी क़यादत से रब्ता किया है, उन्हें उसने रेजिग्नेशन ऑफर किया है विद कंडीशंस कि जी ये कंडीशन है, मुझे एक एनआरओ बनाया उन्होंने खुद ही घर बैठ के कि ये हमें ले दें। वो उन्होंने डिस्कस किया है 24 तारीख को, जब नून लीग का मार्च लाहौर से जाना था तो मार्च रोक दिया गया था कि शायद इसकी जरूरत ना हो, रात 12 बजे तक ये हम ऑन एयर कर देंगे। लेकिन जब ये अपोजिशन बैठी है सारी, अब कोई किसी किस्म का एनआरओ या कोई चीजें ये कोई आने वाली गवर्नमेंट तो दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता, वो मुमकिन नहीं है। अदालतें हैं, आज़ाद है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। अदालतों में मामले जाएंगे, वो चाहते हैं मेरे केस ना बने। वो ये कहते थे कि जो मेरे 3.5 साल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनका ऑडिट ना हो जब तक कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, उस वक्त तक ये नैब के केस ना बने, ईसीएल में मेरा नाम ना जाए। और 4 महीने पहले 6 महीने कह रहे थे, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने की शर्त खत्म कर दी कि मेरे साथ बैठ जाएं, बैठ के नेगोशिएट कर लें और नए इलेक्शन पे हम चले जाते हैं। लेकिन ये अपोजिशन ने कोई बात इनकी नहीं मानी और एक एक करके अपोजिशन अपने सरप्राइज ला रही है सामने। एक सरप्राइज सुबह आया था जब शाहजहान बख्ती साहब आए थे, जी और दूसरा सरप्राइज अभी आया जब मियां साहब का एक आला सतह का नुमाइंदा मुफ्त इस्लामाबाद पहुंचे चौधरी परवेज लाई के घर, जी और जिसमें उन्होंने जो ये कैटेगोरिकल एक फैसला किया है पंजाब में परवेज लाई साहब को वज़ारत आला देने को, वो बाज़ाती तौर पर उन्होंने उनको कन्वे कर दिया है। तो ये सरप्राइज पे सरप्राइज है जो न्याजी साहब को मिल रहा है, अभी और पता नहीं क्या मिलेंगे, तो वो बेचारा काम फेस कर सकेगा। इसने तकरीर के शुरू में कहा कि मैं इस्लाम का नाम लेता हूँ, लोग मुझे कहते हैं क्यों लेते हो, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे नबी थे और वो सारे इंसानों को खुदा थे। ये स्लिप ऑफ टंग है, मैं मानता हूँ, उसने ये नहीं कहा, ना ये उसका मानता, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग इसलिए है कि वो बुखरा बहुत गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। फिर वो आके वो वजीर आजम है यार, और वो कह रहे हैं कि अच्छा ठहरो 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 मेरी बात सुनो, अब मैं सीरियस बात करने लगा। मतलब तुम इससे पहले चुगले मार रहे थे, तुम वजीर आजम हो, तुम्हें यही नहीं पता। वो कंटेनर से उतर ही नहीं सका बेचारा आज तक। तो सीरियस बात क्या थी, एक किताब निकाल ली है, उसका एक सफा खोला है, उसको इंग्लिश में पढ़ के ट्रांसलेशन कर करके बता रहा है लोगों को, ये सीरियस बात थी उनकी। फिर उसने थ्रेट किया आर्मी चीफ को डायरेक्ट नाम लिए बगैर। उसने कहा जी बिलावल भुट्टो के नाना को इन्होंने कत्ल करवाया था और बिलावल अपने कातलों के साथ मिल गया है, और ये कातलों को मकतूल के नवासे को किसने इकट्ठा किया है मुझे सब पता है, और मैं उसको पैगाम दे रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब वो क्या नाम लिए बगैर जनरल साहब का जिक्र कर रहा था। थोड़ी देर के बाद इसी तकरीर में आगे चल के वो साफ फरमा रहे हैं कि जी वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई झगड़ा हो, कोई ऐसा हो, कोई वैसा हो, वरना मैं तो ऐसे कर दूँ तो वैसे कर दूँ। तो अपनी बात से वापस भी चला गया। एक अजीबोगरीब हवलक का बुखलाया हुआ आदमी है जिसको कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। असल में ना सियासी मैदान में ये एक तरफ जो नवाज शरीफ है, जरदारी है, मौलाना है, ये गुरु है सियासत के, इनकी उम्रें गुजर गई, इस बेचारे को पता ही नहीं है। ये उनके सामने तो एक आप कह रहे तिकले मकतब है, तो उनके सामने एक बुलंगड़ा है, बटुंगड़ा है, बहुत छोटा सा। तो ये उनके साथ मुकाबला करने चला, ये मुकाबला चलता रहा 3.5 साल तक। अब वो के बूटों में बैठ गए, अब वो बूट हट गए हैं, तो अब इसके लिए मुमकिन नहीं है वो मुकाबला करना, मुमकिन नहीं है मुकाबला करना। अच्छा साहब प्लीज।
करवल साहब, ऐसा भी हो सकता था कि ये कहीं कोई रस्सी निकाल लेता कि लो मैंने गले में डाल लिया, मैं फांसी लेने लगा हूं, लोग पकड़ के इसको बचाते। इसकी फ्रस्ट्रेशन किस हद तक गई हुई है इस टाइम? बौखलाहट है इसमें गई है। और आप एक बड़ी अजीब चीज पता नहीं देखते हैं कि नहीं, ये साहब तकरीर पर मारे थे, 10 लाख का दावा किया था। ये जो परेड ग्राउंड है इसकी कैपेसिटी 18,000। इसकी तकरीर से पहले फैसल जावेद है, वो मेरा बचपन का वाकफ है, वो उनका एक घटिया इंसान नस्ल का इंसान है। मैं उसको पूरे खानदान पूरे टब्बर को जानता हूँ, उसकी बीवी को भी जानता हूँ। वो कह रहा था वो हसन अफजाल तक बंदे हैं जी, वो चक्री तक बंदे हैं जी, जेनम तक ट्रैफिक जाम है जी, बंदा ही बंदा है, बंदा ही बंदा है। और परेड ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था। परेड ग्राउंड में 18,000 की कैपेसिटी है, वो नहीं भरा इनसे। और फ्रस्ट्रेशन तो फिर होती है ना। 10 लाख का चैलेंज किया था इसने, और मुझे और आपको नहीं किया था, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को नहीं किया था, इसने डायरेक्ट इंडिया वालों को चैलेंज किया था। ये जब 10 लाख की जगह 1 लाख भी नहीं है, 50,000 भी नहीं, 40,000 भी नहीं, 20,000 भी नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन तो थी। अभी इसकी तकरीर जारी थी तो जो वजीर थे वो उठ के चले गए थे जलसे में से। एक ये बात कर रहे थे, इन्होंने किसी बात पे गवाही दिलवानी थी शाह महमूद कुरैशी की, तो देख रहे शाह साहब सही नहीं, पता चला शाह साहब को जा चुके हैं। मैंने इससे पहले नहीं देखा कि बेनज़ीर तकरीर कर रही हैं और उनके कैबिनेट के बंदे या उनके करीबी साथी जलसा खत्म होने से पहले या तकरीर खत्म होने से पहले चले जाएं। मियां साहब तकरीर कर रहे हैं और कोई बंदा उठ के चला जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं देखा जिंदगी में, आज पहली दफा देखा है कि वजीर आजम तकरीर कर रहा है, सिटिंग वजीर आजम और सिटिंग मिनिस्टर उसके पार्टी के आदमी ड्यूरिंग जलसा खत्म होने से पहले चले जाए। अब इससे ज्यादा क्या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है? सबको पता है, और मजे की बात है इसको खुद भी पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा करवल साहब जरा ये बताइए, बात आपने की है ना, तो रसीद तो इसके बनती थी। जिस दिन ये IMF में गए हैं, पैर जोड़ के हाथ जोड़ के सर के बल गए हैं, उस दिन इन्हें रस्सी की जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने पहले कौम से कहा था कि मैं रस्सी डाल दूंगा, IMF में नहीं जाऊंगा, तो उसने नहीं की, तो अभी क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। करवल साहब अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं कल शाम तक, उनको टाइम मिल गया, तो उसके बाद जो इसके ये गिल वगैरह और ये वो इनका क्या बनेगा सर? आपको पता है फरा भाग गई थी, जी जी जी, एग्रीकल्चर और फरा ये भाग गए थे, इन्हें ले आया गया वापस। अच्छा जी, ये अहम विटनेस हैं। इसका मतलब है ये एक तरह के अरेस्ट है, एप्रीहेंडेड है, ये प्रवेश ये इसका एप्रीहेंडेड है फरा को वापस लेके हैं, तो फिर तो इनकी निगरानी में भी फरा लोग सारे जो हैं, और वो ऑलमोस्ट निगरानी में। उनके केसेस, शहबाज गिल के केसेस, शहबाज गिल जब पाकिस्तान आया तो इसके पास जाने के लिए घर नहीं था यहाँ पे जी। अपने ससुराल के किसी दूर के रिश्तेदार के घर में एक फ्लैट था 2 कमरों का, उसमें ये रहा है वहाँ पे, और अब वो एक फार्म हाउस में रहते हैं। ये फार्म हाउस में कैसे चला गया? वो अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए की जगह पे फार्म हाउस कैसे बन गए? ये सारा एक है। ये जो शहजाद अकबर साहब है हमारे, ये जब यहाँ से ओहदा खत्म हुआ, तो ओहदा खत्म होने की वजह ये थी कि हमारी कुछ एजेंसीज, कुछ इन्वेस्टिगेशन इदारों ने 9 आदमी बुलाए थे, जिनमें आपका भाई भी शामिल था, और ये दिखाया गया था कि इन्होंने 5 अरब रुपए की करप्शन की थी, जिसके सबूत एक एजेंसी के पास है। और ये सिर्फ एक केस में थी, जो इन्होंने चीनी वालों को डरा धमका के वो जो चीनी स्कैंडल के चक्कर में उनसे पैसे लिए थे, वो लाहौर गार्डन टाउन बरकत मार्केट के किस दफ्तर में कितने पैसे दिए गए, कहाँ पे वो गए, कौन से अकाउंट में है, फिर किस किस अकाउंट में गए, एक एक चीज की डिटेल है। ये वो ख्याली कहानी टिटी वाली नहीं है, ये मखसूद चपरासी या वो पापड़ वाली कहानी नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक कहानी है, प्रूफ्स के साथ कहानी है, सारे रिकॉर्ड के साथ कहानी है। इसी तरह ये सारे लोगों के सारी चीजें एजेंसियां ने पकड़ी जा चुकी हैं, और इनकी बदकिस्मती है कि इनके यहाँ बैठे बैठे पकड़ी जा चुकी हैं। तो ये गिल साहब और ये सारे लोग भागेंगे, इनका भागना मुश्किल होगा, लेकिन अगर भाग भी जाएंगे तो इन्हें वापस लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट 350 से आप सुन रहे हैं ना, नवाज शरीफ को लाएंगे, डार को लाएंगे, हम ये करेंगे, वो कुछ नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि सारी दुनिया की अदालतें प्लस पाकिस्तान की अदालतें उन्हें इनोसेंट सर्टिफिकेट देती हैं हर केस में। जहाँ पे वो नाअहल हो रहे हैं वहाँ पे कोर्ट का फैसला पड़े, उसका लिखा करप्शन 1 रुपए की नहीं है। तो जो करप्शन नहीं की है जिसने, जो इनोसेंट हो, उसको आप बाहर से नहीं ला सकते, सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं। और जो चोर होते हैं
آپ کو پتا ہے راج گروپ والا کہاں سے پکڑ کے کہاں گیا تھا؟ آپ کو پتا ہے ملک ریاض کس طرح پاکستان آیا تھا؟ ابھی یہ ریسنٹ اس کی بات ہے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے ایک نیوی کے چیف بھاگ گئے تھے پاکستان سے, وہ بھی آ گئے تھے. جو چور ہوتے ہیں نا ان کو لانا کوئی مشکل نہیں, یہ چور ہیں انہیں لانا بہت آسان ہے. میاں صاحب نے ڈیوٹی مجھے دی تو انشاءاللہ میں 2-3 مہینے کے اندر سارے واپس لے آؤں گا. پہلے تو بھاگ گئے تو واپس آ جائیں گے. بھاگ گئے تو سارے کے سارے واپس آ جائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کرنل صاحب اللہ زندگی سے دے, سلامت رہیں. اب ذرا آخر میں ذرا یہ بتاتے جائیے گا کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ جلوس لے کر اسلام آباد پنڈی جا رہی ہیں اور وہاں سے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی والے میں, اگر یہ سارے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تب تک عمران خان صاحب موجود رہتے ہیں تو وہاں پہ کیا حالات ہوں گے؟ سیکیورٹیز کے لیے تو بڑے ایشو ہو جائیں گے سر. دیکھیں جو صاحب یہ جو مولانا وہاں پہنچے ہیں نا, ایک بہت بڑا مجمع لے کے. آج پریڈ گراؤنڈ میں اتنا بندہ نہیں تھا جتنا مولانا کا والنٹیئر ہے انصار الاسلام کا, جو ان جلسوں کی سیکورٹی کے لیے ہے. آج پریڈ گراؤنڈ میں اتنا بندہ نہیں تھا جتنا ابھی آپ دیکھ رہے تھے گجرانوالہ کے کارنر میٹنگ کرنے یا استقبالیہ کیمپ سے کر رہی ہیں, وہاں وہ تھا. اب یہ سارے وہاں اکٹھے ہوں گے. ابھی ANP نے آنا ہے, ابھی باقی پارٹیاں آ رہی ہیں. ایک بہت بڑا کٹ ہو جائے گا وہاں پہ, اور سیکورٹی ان کی اپنی ہے. تو یہ ہونا نہیں تھا, نہ مولانا نے آنا تھا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے 15 نومبر کی ڈیٹ دی تھی, پھر وہ دسمبر شروع کیا, پھر دسمبر اینڈ کیا, پھر مارچ کیا, پھر اب وہ جا کے نکلے. یہ نکلے ہیں اس تھریٹ کے بعد جو نیازی صاحب نے اعلیٰ ہماری جو آرمی کی لیڈرشپ ہے اس کو تھریٹ کیا تھا کہ میں 10 لاکھ بندے لاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس 10 لاکھ کے آدمی کو یہ سب کو پتا تھا کہ 10-20 ہزار بھی آ گئے تو بڑی بات ہے, اور آج وہی ثابت ہوئے. تو یہ 10 لاکھ تو اس دھرنے میں نہیں لا سکا جہاں ہر وقت ناچ گانا ہوتا تھا, تو آج کس نے آنا تھا؟ لیکن اس کے مقابلے میں لاکھوں کا مجمع انہوں نے کھڑا کر دیا. اس کا جو ایک ٹرمپ کارڈ تھا کہ وہ ڈر جائیں گے اور میرا ساتھ دیں گے اور اتحادیوں کو مجبور کریں گے ساتھ لینے کے لیے, جانے والوں کو مجبور کریں گے واپس ہونے کے لیے, یہ اس کا ٹرمپ کارڈ تھا. اور اگر یہ 1-1.5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیتا تو پتہ نہیں اس کی کیا ٹون ہوتی. 10-20 ہزار روپے بولتا ہوا تھا یہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راجہ صاحب کہ اگر وہاں پہ یہ 1-1.25 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیتا تو شاید اس کا کیا پلان ہوتا, لیکن وہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکا. راجہ صاحب اللہ سلامت رکھے, آپ کو زندگی سے دے. بہت شکریہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے, انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیلاً بات ہوگی. بہت شکریہ راجہ صاحب. بہت شکریہ, بہت تھینک شکریہ. یو, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہے. وہ جو بڑی اینڈ پہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ اگر یہ 1-1.25 بندہ خان صاحب اکٹھا کر لیتا تو پھر یہ کیا رنگ بازی اور کیا ڈرامہ بازی کرتا. لیکن وہاں پہ سدیلا صاحب اس کا مطلب یہ ہے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لیٹر اس کے پاس کافی سارے تھے, وہ اصلی لیٹر بھی نکال لیتا. وہ لیٹر پتہ کون سا دکھا رہا ہے یہ؟ دیکھیں کون بے عقل لکھ کر دھمکیاں دیتا ہے یار. عمران خان. یہ پوائنٹ مطلب ڈیجیٹل دور میں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عالمی طاقتیں لکھ کے دھمکیاں دے رہی ہیں. یعنی دیکھیں اس کو فون نہیں آ رہے اس لیے لکھ رہے ہیں. نہیں, یہ وہ لیٹر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ڈان اخبار نے 18 یا 19 تاریخ کو چھاپ دیا تھا یہ کہہ کر کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر جاری ضرور کیا ہے جس میں رشیا کی پالیسی کی سپورٹ میں یوکرین کی مخالفت میں کانسیکوینسز کے حوالے سے آگاہ کیا ہے. اب آپ اس کو سرکاری لینگویج میں عوام کی طرف تھریٹ نہیں, اس کی حکومت کو یا اس کے مشیروں کو وہ تھا, کیونکہ لایا تو شاہ محمود قریشی نے سامنے اور یہ تانے مارتے تھے زرداری صاحب پہ. اچھا ایکس سروس مین کے پرسنلی اس کے اوپر میں نے کسی سے گفتگو کی تھی, میں نے ایک سفارتکار ہی ہیں سابق, وہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو گلوبل ولیج ہے نا دنیا, اس میں اگر کوئی یہ شخص یہ ٹرم استعمال کرتے نا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, تو کہتے ہیں اس سے بھی برا منا جاتے ہیں وہ کہ یار ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, ہم نائجیریا, صومالیہ, ایتھوپیا کے لوگوں کو غلام نہیں سمجھتے. آج کل کی ٹرم کے اندر آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ برطانیہ کے لوگ جو ہیں, یہ امریکنز جو ہیں, یورپینز جو ہیں, وہ دنیا کو غلام سمجھتے ہیں؟ ان سے اپنے ملک میں اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار فلاں ملک آپ کو غلام کہہ رہا ہے آپ کو. تو اس کو بے وقوف کو سمجھ بھی نہیں آتا. بائیلیٹرل تعلقات ہوتے ہیں, ایک دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں. یورپی یونین نے, آپ نے جو خط کی بات کی, یورپی یونین نے کہا کہ آپ ایک ایسے ملک کا ساتھ دے رہے ہیں جس نے کسی ملک کے اوپر چڑھائی کی ہے, اتنی سی بات کی تھی. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم گفتگو کرتے ہیں, آپ نے سیدھا وہ اپنی قوم کو
कहने के लिए कि मैं जो भुट्टो बनने जा रहा हूँ, और वो भी कोशिश आज हो सकती थी भुट्टो बनने की, वो भी उन्होंने गवा दी। अगर वो खुल के किरदारों को नाम ले लेते तो शायद भुट्टो बन जाते आज। अच्छा चले, ये बड़ी खूबसूरत, इनको ये भी नहीं पता कि फांसी वाली ख्वाहिश पूरी हो जाती। भुट्टो साहब को जिस शख्स के वालिद के कत्ल पर फांसी हुई है, पीपल पार्टी में है। ऐसा ही है कसूरी साहब, वो इनको ये भी नहीं। अच्छा, एक्स सर्विसमैन के एक सीनियर मुमताज एयर मार्शल लतीफ साहब ने बड़े बड़े कैपिटल हरूफ में डिसअपॉइंटेड लिखकर भेजा है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। और वो जो बात उन्होंने की राजा साहब ने कि तकरीर के दौरान वो काफी सारे 5-6 वुज़रा जो हैं वो उठकर चले गए, और समा की न्यूज भी है वो कंफर्म हो गई है ये बात। तो ये भी मेरा ये ख्याल है सर, कौम ने यू टर्न ले लिया है। क्या ख्याल है? कौम ने यू टर्न ले लिया है या उन्होंने भी क्या किया है? उनकी एक आदत होती है, वो बंदे को ना शिकारी को पकड़ के ना जिन जानवरों को शिकार कर रहा था उनके आगे छोड़ देती है। इधर भी यही हुआ है, इसको ला के उन्होंने अवाम के आगे रख दिया है कि तुम्हारा ही फ्यूचर इसने खाया है। अच्छा, ये जिसको जलसे करने की इजाजत दी गई है, चल जा जरा शुगल मिला कर ला, ये आहिस्ता आहिस्ता कम करते 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 यहाँ पे भी उनके बाद देखा इस्लामाबाद में बड़ा बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, वो बेचारा बड़ा बुरी तरह फ्लॉप हुआ है इस्लामाबाद में। पेशावर से तो सर ट्रांसजेंडर नहीं आए। अच्छा, मनोरंजन भी कोई नहीं था, कोई मनोरंजन भी नहीं था खास वहां पे आज नहीं आए, और जो आए हैं तो बड़ा ब्लंडर सब आज बड़ा ब्लंडर हुआ है। पहली बात तो ये पहला ब्लंडर तो ये, दो बड़े ब्लंडर हुए। पहला ब्लंडर तो ये हुआ कि उन्होंने कहा मगरिब की अजान में थोड़ा टाइम है, गाना लगा दो, और फिर फजर की अजान लगाई है, और फिर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मगरिब की अजान में स्टेज से फजर की अजान दे दी आज डीजे ने फजर की अजान। आपस की बात है, मैं गाड़ी में था तो मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, 2-3 दफा उन्होंने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, नीचे से वार आ रही था बनने का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, लेकिन उस बंदे ने लफ्ज मोहम्मद तक नहीं पहुंचता। वो आप बिलीव करें, खुदा की कसम मैं परेशान नहीं पहुंचेगा। वो ला इलाहा कहता है या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि मैं हूं अल्लाह तुम्हारा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पे वो नहीं पहुंचता, मुकम्मल ही नहीं होता, कलमा मुकम्मल ही नहीं होता मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि उसके कहने से इनका अपना जो देखें, जिन ताकतों ने इन पर इन्वेस्टमेंट करके लाई थी वो ताकतें भी नाराज हैं। इसलिए कहता है कि जी बाहर से साजिश हो रही है, क्योंकि इसको आइडिया हो गया है कि जी वहां से वो फंडिंग भी नहीं आ रही, और उन लोगों ने जो इससे एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, इसने रावी शहर का नाम लिया, 2 करोड़ दरख्तों के नाम ले लिए, और कोई हाई राइज का भी नाम लिया। ये सारे काम हम कर लेंगे भाई, हम नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाया, चला सकते हैं, तो ये भी कर लेंगे, तेरी जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ पे एक नया इल्जाम लगाया 1000 अरब रुपए का। वो इल्जाम ये है कि मुराद सईद जो है वो सड़कें सस्ती बना रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। पहली बात तो ये होगी कि अभी जब नंबर्स आएंगे सामने आपको पता लग जाएगा कि पीएमएलएन के दौर से बहुत कम सड़कें बनाई गई हैं, उसका 40% भी सड़कें नहीं तामीर हुई जो पीएमएलएन के दौर के अंदर तामीर हुई। फिर पर किलोमीटर 25 करोड़ रुपए सस्ती बना रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? उस वक्त 100 का डॉलर था, अभी 180 का डॉलर है। मर नहीं जाएगा। बताता हूँ कैसे सस्ती कर रहे हैं असद भाई। वो सड़क जो 1 किलोमीटर की है वो आधे किलोमीटर की करके सस्ती होगी। नहीं, आधा किलोमीटर मैं कहता हूँ उसको 100 मीटर भी लेकर आ जाए, कंपैरिजन नहीं बनता। ये बातें किसको बता रहे हैं? अगर सईद की तारीफ करनी थी असद भाई, मुराद सईद की कहा कि मुराद सईद की मैं बात नहीं मान रहा था। मुराद सईद ने मुझे कहा, मैंने मुराद सईद को बुलाया कि इधर आओ मेरे पास, मुझे समझाओ। फिर वो बैठ के समझाया उसको कि उसने कहा ऐसे नहीं ऐसे, उसने कहा लेकिन हो सकता है उसने सिर्फ सड़क जो है कागज पर बना के दी हो, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा ही हुआ है। असल में बात समझने की है, इन्होंने टोटली बोले झूठ। बनी हुई सड़कों के ऊपर फीते काट दिए हैं, टिका के करप्शन की है, प्रोग्राम इनके यहाँ पर रहना नहीं है। सर एक ये बड़े मजे का कमेंट है सर, एक प्लीज। कहता है मेरा असद कैसर का मशवरा है कि नवाज शरीफ की सेहत याबी की दुआ करवाने के बाद कौमी असेंबली का इजलास मंडे को मुलतवी कर दें। बिल्कुल सही कहा वो, और वो ऐसे ही करेगा। सब खुश, नून लीग भी खुश, सारे खुश। अरशद साहब प्लीज। जी, तो ये जो सड़कें बनाई है ना, ये इसी तरह की बनी हुई है, कागजों का उलटफेर है। इसके अलावा काम कौन से हुए हैं? इन्होंने जो मरम्मतें करवाई हैं उसको भी बता दिया। इन्होंने जो मोटरवे पीएमएलएन के दौर के बने हुए मोटरवे, उसको ये 4-4 दफा इफ्तिताह कर चुके हुए हैं। शर्म इनको नहीं आती। तख्तियां सामने उखाड़ते हैं। अच्छा, और जो उखाड़ने का जिनको टारगेट देते हैं वो खुद कैमरे लेके खड़े हो जाते हैं।
تو کام تو انہوں نے سارے الٹے کیے ہیں نا. مریم نواز پھر یہ جو کاسٹ بات کی انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کبھی 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کیا. جب ایک عورت نے جب 1 گھنٹہ بھی کوئی کام نہیں کیا تو اس کو تم نے اتنے عرصے کال کوٹری میں رکھا کیوں؟ خود اعتراف کر لیا نا آج تک. وہ انتہائی ڈسپریٹ ہوا ہوا, بہت شدید سر ہارا ہوا تو ایک بہت عرصے سے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا مزے کی بات ایک اور ہے کہ اس نے کہا کہ یہ سازش جو تیار ہوئی ہے میرے خلاف, یہ 3 مہینے پہلے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ہمارے خلاف سازش تیار ہو چکی ہے. 3 مہینے 3 مہینے پہلے یہ بھی اس نے آج بات کی ہے. جی سر اس کو بہت پہلے کا پتا ہے. 3 مہینے سر سے سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا تھا 3 مہینے پہلے. 3 مہینے پہلے سایہ اٹھ گیا تھا. بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی, ہمیں بھی انصاف کرنا چاہیے. ہم صرف پارٹی کی محبت میں نہیں, اگر کوئی تقریر واقعی جاندار کی ہوتی اور کوئی ایسی ہوتی تو ہم اس کی پوری تعریف کرتے. ایسی میں نے کل کہا تھا سنجے صاحب کو یہی بات کہ یقین کرے ہوتی نہیں ہے, نیوٹرل ہو کے بندے کی تعریف ہوتی نہیں ہے. نہیں ہے ضمیر صرف جگہ چینج ہوتی ہے, تقریر وہی رہتی ہے. عقل نام کی کوئی چیز اگر ہوتی تو, اور مگر میں بتاؤں باجوہ صاحب بھی سن رہے ہوں گے تقریر اس کی بیٹھ کر. یہ کومنٹس چل رہے تھے مسلسل, یہ کومنٹس چل رہے تھے کہ باجوہ صاحب سن رہے ہیں. اچھا بھائی سن رہے ہیں تو یہ سن رہے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو کہہ رہے اے لو دیکھ لو جی, پھر تسی دیکھ لو تم اپنا. تانوں کیا تھی میں تو ڈنگ کڈیا نہیں بولتا, کچھ نہیں کہندا, بے فکر ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جو یوتھیوں سے باہر انٹرویو کر رہے تھے جب تقریر سن کے آئے تو ہر یوتھی یہی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہا لیکن تقریر بڑی شاندار تھی. کہتے ہیں عمران خان آج بولے, کیا بولے عمران خان سے پوچھا کیا بولے, کہتا ہے پتہ نہیں لیکن بولے بہت زبردست ہیں آج. تو یوتھی بھی پریشان ہے بیچارے, وہ بھی ان کی بھی چراغوں میں جو چراغ ہے ان کی بھی بس پھپکپا رہے ہیں بس کسی وقت بھی. اچھا یہ بات بھی ایک سمجھنے کی ہے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو خدا کا اعلان ہوتا ہے. اس شخص کو گدھا جب کہا جاتا ہے نا تو پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو فیصلہ ہے بھائی قرآن پاک کا کہ جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی ہے, اور اس شخص کی تقریر سن لیں, جب بولے گا بکواس اور ایسی نجاست ہی بکے گا جس کا نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا, انسان کے سر میں درد ہو جاتا ہے. ماں سوائے ان اعتقادیوں کے جو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کی بات پہ یقین کرنا, اس کے جھوٹے وعدوں پہ یقین کرنا. مطلب ان لوگوں کو یہ نہیں شرم آتی کہ پچھلے یہ 10 12 15 سال سے مسلسل لارے پہ لگا رہا ہے, اور یہ پچھلے 4 سال سے اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کے ابھی تک کیا کیا باتیں کر رہا ہے. مطلب پہلے 100 دن کی معیشت کا کیا پروگرام نکالا تھا کہ ہم آپ کو 2 مرغیاں اور 1 مرغا دیں گے, ان کو پیچھے سے ٹیکا لگا دیں گے, پھر وہ انڈے دیں گی, انڈوں سے بچے نکلیں گے, بچے بڑے ہو جائیں گے, پھر وہ انڈے دیں گے, اور پھر اس کے بعد آیا کٹوں کے اوپر, پھر بیری کے شہد کے اوپر آ گیا. کسی ملک کے وزیر اعظم کی اس طرح کی پلاننگز ہوتی ہیں. اچھا پھر اس نے کہیں دیکھ لیا گھر کے اندر بیگم نے لگایا ہوا آواکاڈو, کہتا ہے آواکاڈو کی کیا بات ہے بھائی, آواکاڈو کا تیرا لینا دینا کیا ہے, زیتون وہ دیکھ لیا. یعنی کہ اس شخص کی نا دماغی حالت, اور اس کو سپورٹ کسی بھی ملک کا چھوڑیں, ایک گھر کا اگر نظام بگاڑنا ہونا تو اس گھر کا سربراہ جاہل آدمی کو لگا دیں. تو اس تو پوری قوم کا سربراہ لگایا گیا ہے. وہ اگر مصطفیٰ چودھری کا کلپ چلا دیں, اس نے جو کل ٹویٹ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ چپ کرو بیٹھو آرام سے, کوئی نہیں جانا عمران خان کے جلسے میں. اس نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ کیا کیا تقریر میں ہوگا, باتیں کیا کیا ہوں گی. یار کمال کا کلپ ہے, اگر وہ ڈھونڈ کے لگا دینا, ایکسٹرا آرڈنری کلپ ہے وہ اس بندے نے. اسے ڈانٹا ہے بگا دے یوتھیوں کو, اسے کہا چپ کر کے بیٹھو گھر میں, کوئی ضرورت نہیں جانے کی تم لوگوں کو. بڑا کمال کلپ تھا یار وہ, قسم سے. نہیں سر بالکل ایسے ہی ہے, لیکن میں اب ذرا اگلے کیا سینیریو ہے خان صاحب, ذرا اس پہ بھی بتا دیجیے گا. یہ مطلب کہ کیا ہے اب یہ تقریر تو ہوگی, یہ دن تو گزر گیا. ہمارا تو اب یہ ہے کہ اب ہم اپنا جو قافلہ آ رہا ہے وہ خیر و عافیت سے یہاں پہنچے اور یہاں سے استعفیٰ لے کر جائیں. بس یہ اس کا آخری جو حتمی جو ہے ہمارا نتیجہ وہ یہ ہے کہ اس کو ابھی نہیں اتارا تو پھر کب اتاریں گے سر؟ اچھا اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا ایک پورا بڑا لشکر موجود ہے اس وقت میں, اور پورے انتظامات کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں کہ میڈیا کو اس وقت میں کنٹرول دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو میڈیا کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اس کو کوریج ہی حاصل نہیں ہے. ایون اس کو سوشل میڈیا کے اوپر کتنے طریقے سے جو اس کو دبایا گیا ہے. اب وہ بھی جس ٹائم میں آئیں گے, اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے تو ڈی چوک پر ہی جانا ہے, ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. اور یہ میرا خیال ہے اگر استعفیٰ لینا ہے تو یہ کرنا پڑے گا.
जैसे ये धरना लेकर आए थे 2014 के अंदर, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने तो जनाब डी चौक पे जाना है, और क्रेन लेके चल पड़े थे। मीडिया मौलाना फजल रहमान के साथ थोड़ा मीडिया मैनेजमेंट का मसला भी है, ये भी मुझे खबरें हैं। असद भाई मीडिया मैनेजमेंट का मसला है, हमारे पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, हम पहले ही जेलों में हैं, हुकूमत से बाहर हैं, असर रसूख नहीं है, माल बंद है, अवाम ख्वार है, इससे आगे हमारा क्या नुकसान हो सकता है। हाँ, हमारे पास जीतने के लिए ये है कि रिलीफ है, इसको हटाया जा सकता है, इसका मुआवजा किया जाए और एक इबरतनाक अंजाम सामने रखा जाए, ताकि कोई भी ताले आजमा, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या नीम सरकारी हो या मुल्क से बाहर हो या अंदर हो, वो दोबारा हिम्मत ना करे कि अवाम ने जब यू टर्न ले लिया है तो वाकई वो मजलूम के साथ खड़ी होगी है, जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है। बस बिल्कुल सर, ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा था कि इसको हटाने का मंसूबा तो बन चुका था, लेकिन अपोजिशन हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जो हालात पैदा हो चुके थे वो यही चाह रहे थे कि ये 5 साल पूरे करे। आपको पता है आखिरी बजट पेश होना था जून के अंदर, उसके बाद इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाना था, तो किसी को जल्दी नहीं थी। लेकिन ब्लंडर इतने बड़े बड़े हो चुके थे और ऐसी ऐसी थ्रेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान को कि जिसकी वजह से नागुज़ीर हो चुकी है। इन शख्स ने पाकिस्तान को सीधा सीधा ले जाके कुएं के पास ले जाके कहा मैं फैक्ट्री लगाऊं, तो इस शख्स के हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी था इस वक्त। और इसके ऊपर शहबाज शरीफ को लें, अगर जरदारी या बिलावल या बाकी जमातें, ये बड़े इंटैक्ट, और मियाँ साहब ने जो तमाम तर फैसले किए हैं, ये मियाँ साहब को ये चीज़ें बताई गई है ना। मियाँ साहब की तरफ से जो फैसले आए हैं, ये जहांगीर तरीन के जो मामलात हैं, तरीन ग्रुप के मामलात हैं, काफ लीग को वजारत आला देने की बातें हो रही हैं। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर नवाज शरीफ